Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. One of the finest actors of the industry, मनोज बाजपेयी. स्वागत है आपका बाउंस बैक भारत फेस्ट में मनोज. Thank you for inviting me on this platform, Stuti. Thank you for all the nice words. No, you deserve all this and more. It's such an honor to be speaking to you. मनोज, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, आप कैसे हैं? और ये जो पिछला वक्त था, आई थिंक फॉर एवरीवन it was strange, it was tough, nobody really expected इस तरीके से pandemic and then lockdown and everything that we went through collectively as a nation. आपके लिए ये period कैसा रहा? To start with, we are privileged lot. Okay. We could move anywhere we wanted, with all the RT-PCR tests in place. Most of our months were spent in Uttarakhand because, by chance I was shooting in the first, we just started shooting when the first lockdown happened, and my family was with me, so we could afford to stay back and gauge the situation from a distance. I would say that we were lucky, we were blessed. But people were not. Many of the people were not. आपने बहुत सही बात बोली about privilege, जो I think इस period में हम सबको समझ में आया, because at a time when people were going through such a crisis, hospital beds and oxygen, मतलब कोई मदद करना चाहे भी तो there are limits. And if we just take this as a metaphor, then हम सबकी ज़िंदगी में भी वो एक phase ज़रूर आता है जब लगता है कि सब अंधेरा है, कुछ नहीं हो सकता आगे. And you're somebody who's gone through this. आपने वो झेला है first hand और उससे उभर के आप यहाँ आए हैं कि आज जो इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स हैं, somebody like पंकज त्रिपाठी and others, वो आपको आइडल मानते हैं. वो कहते हैं कि उनको देखा तो हमें लगा कि हम भी जुर्रत कर सकते हैं, कि हम भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो वो सभी लोग जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं मनोज, उन्हें आप क्या कहेंगे? I feel very happy when people say that, because if my life is giving inspiration to the generation who is coming after me, and they are taking that that courageous step to leave their near and dear ones to chase their dreams, it's quite flattering. But to tell you the truth, I personally never wish that anybody goes through what I have gone through. I personally don't want people to go through that. I really want them to have a very not a very disastrous journey, or that massive fall that I have seen. It is becoming a fashion to say that I have gone through a struggle. It's not a good thing. I don't want even my enemies to go through that. I want that journeys to be easy. I want people to work on themselves, work on their skill and craft, rather than really, trying to search for the next meal. I really don't want people to feel pathetic when they are sick and they don't have money in a very difficult city, in an alien city, away from their parents, away from their homes. If I have gone through it. I have gone through it because I was on a journey, and I was prepared for it. For me, a middle class person or lower middle class person or a rickshawala, when they are traveling in a train, or a rickshawala, peddling his rickshaw, for him, that's not his dream. It's not his dream. The migrant, when they were on their way back home, exactly, it was not their dream. They were not chasing any dream at that point of time. So let's look at it in a very larger way. Okay, with a larger perspective. It sounds very easy in a book. It sounds very easy in an interview. Bouncing back is really not easy. And I will not talk about my life right now. I'll talk about all those lower middle class people who have been going through it
since 1.5 years, their life is in a disarray. It's gone. I know many of the people. I know many of, and not only people who are working in offices or the corporate offices, or the production guys, or the set people. I know so many have lost their jobs. Okay, I know so many actors who left the city, Stuti. Yeah, yeah, yeah. They couldn't afford the rent. It's not easy. It's not It's easy. not easy. Just imagine, giving up on your dream Yeah. and going back. It's not easy. How bad they must be feeling about themselves. Yeah. So bouncing back is, for me, you know what it means? Right now, I'm withdrawing myself. Hmm. I'm taking 5 steps back, Yeah. and then again I start running. Yeah. Taking that step back is not a defeat. Hmm. 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 Beautifully explained, Manoj. But what was what was your phase like? जब like you said, आपको भी एक एक घंटा एक साल की तरह लगा, बिकॉज टैलेंट में तो कभी कमी नहीं थी, आपके काम को सराहा भी गया, एंड येट यू हैड योर शेयर ऑफ स्ट्रगल, यू टुक टाइम टू रीच वेयर यू वांटेड टू. अभी 18 साल की उम्र में घर छोड़ता है बंदा. 18 साल की उम्र में वो उम्र ऐसी होती है कि जब आपको लगता है कि आप दुनिया मुंबई बदल और सकते हैं. हाँ, मुंबई और दिल्ली की आप तो पूरे देश को जो है आप कब्जा कर सकते हैं. वो उम्र होती है, उमंग होती है आपके अंदर. लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर आपको जो है हर चीज आपको सताती है. हर चीज, जो दर्द है वो ज्यादा महसूस होता है आपको. और जैसे जैसे समय गुजरता है, क्योंकि आपकी उम्र जा रही होती है और संघर्ष करने की ताकत भी आपकी जा रही होती है. और एक समय ऐसा आता है जब आप सच में अपने ऊपर शक करते हैं कि क्या मैं सच में अच्छा हूं, या लोग अभी तक मेरे मुंह पे ही झूठ बोल रहे थे. एक सेल्फ डाउट का जो सिचुएशन आता है, वो सबसे खतरनाक होता है. आज मेरी कोशिश ये रहती है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, मैं कहीं ना कहीं मैं अपने संपर्क, मैं उन लोगों से संपर्क करा दूं, ताकि उनकी जर्नी थोड़ी छोटी हो जाए. काम मिलने तक की जो जर्नी है वो छोटी हो जाए. वो जो 5 साल है, उसमें से मतलब 3 साल मैं घटा देता हूँ. इसको मैं जाकर के इस बंदे से मैं मिला देता हूँ, या उस बंदे से मिला देता हूँ. जहां तक पहुंचे में इसको 2 साल लग जाएगा. तो ये सारे काम जब मैं कर रहा होता हूँ, तो मैं उनके चेहरे पे वो खुशी और वो ग्रेटफुलनेस देखता हूँ. और जो मुझे दिल से बहुत मुझे दिल में बहुत सुकून देता है कि जब मैं किसी को जाके किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलाता हूँ और कास्टिंग डायरेक्टर को डांट के बोलता हूँ कि भाई इसको आप ऑफिस के चक्कर मत कटवाना, बहुत अच्छा एक्टर है, आप इसको ऑडिशन के लिए बुलाइए. तो कहीं ना कहीं मैं एक एक स्टेप ले रहा हूं उसकी जर्नी को छोटा करने में. एक स्टेप ले रहा हूं उसको ये साहस देने के लिए कि भाई देख, मैं तुझे अच्छा मानता हूं, तू अच्छा है, डोंट गिव अप. सो ये ये हम सबको करना पड़ेगा. ये हम सबको करना पड़ेगा. ये जो इनसिक्योरिटी एक दूसरे को लेकर के एक अननेसेसरी का कंपटीशन, मेरी रोटी कोई नहीं खा सकता है. मेरा मन होगा तो आधी किसी को दे दूंगा, लेकिन रोटी तो मेरे पास ही आएगी. तो और आपको ये मानना पड़ेगा कि आप यूनिक हैं. हर आदमी यूनिक है. हमको अपनी यूनिकनेस को तलाशना है अपने अंदर में. और डर के साथ तो आप नहीं जी सकते, क्योंकि जीवन तो जीना है आपको. इसका दूसरा ऑप्शन एक ही है, जहां पे हम सब जा रहे हैं. लेकिन जीवन तो हमको जीना है. जीवन को या तो मैं मर खप के जीऊं, या मैं पूरे कपड़े उतार के जीऊं. और मैं पूरे कपड़े उतार के जीने में यकीन रखता हूं कि मैं पूरी हवा को मैं अपने बदन को छूने दूंगा. भूख भी लगी है, भूख लगी है तो मैं अपने दोस्तों को घर चला जाता था. ठीक उसी समय जाता था जिस समय खाना मिल सकता था, जहां पे उसको थक करके पूछना ही पड़े, हार के पूछना पड़े कि खाना खा लो.
या किसी शूटिंग में ऐसे समय जाता था जहां पे किसी यूनिट में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट कैमरामैन मेरा दोस्त होता था, और ठीक लंच टाइम में पहुंचता था कि वो मुझे खाना खिला देगा। हम्म, तो वो तरीका हम ढूंढ लेते थे। मैं उसको रोमांटिसाइज नहीं कर सकता। हम्म, मैं मैं कहता हूं कि तरीका ढूंढना पड़ेगा आपको। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जीवन को जिस किस ढंग से जीना है, ये हमारे ऊपर है। मेरे अपने जीवन में अभी देखिए, अभी ओटीटी आया है तो लगातार काम जो है ना, चॉइसेस काफी हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं है। मैं मेरे कंटेम्प्रेरी जितने भी हैं सबके पास है, सब बहुत बिजी हैं। लेकिन इसके पहले तो मैंने पूरे 24-25 साल काटे हैं इसी इंडस्ट्री में। कभी सत्या से ऊपर गया, तो कभी ठीक कुछ साल के बाद 2 नेशनल लेने अवार्ड थे मेरे पास में, उसके बाद भी जो है काम नहीं था। कभी एक ही दिन में 3-4 काम से निकाल दिया गया। कभी आपको एक शॉट देने के बाद बोल दिया गया कि भाई आप कपड़े चेंज कर लीजिए, हमें आपकी दरकार नहीं है। तो अ, उन उन समय को मैं रोमांटिसाइज नहीं कर सकता। मैं जब ये बात किसी को बोलूंगा तो उसको लगेगा अरे यार क्या बात है यार, मनोज भाई ने तो ऐसा कर दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए भाई, तकलीफ तो हुई थी, और तकलीफ ऐसी हुई थी कि लगा था कि जैसे कि जमीन खिसक गई। लेकिन मैं हमेशा लोगों से दरखास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि तकलीफ होगी, लेकिन जितनी जल्दी हाथ झाड़ के खड़े हो जाओ, ये बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी रिजेक्शन से ऊपर उठो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने अंदर में एरोगेंस तो आपको थोड़ा थोड़ा सेल्फ वर्थ तो लेके आना पड़ेगा। आई विल नॉट लेट एनी वन डिफाइन मी। और जीवन को बिंदास बिना किसी डर के जीना है। ना भूख से डर, ना काम ना होने का डर, ना फिल्म के फ्लॉप हो जाने का डर। No, but you know, honestly, seriously, अभी जब आप बोल रहे हैं, I just find it so difficult to even comprehend कि कभी आपको किसी ने बोला होगा कि हमें फिल्म में आपकी ज़रूरत नहीं है, या एक दिन में 2-3 फिल्मों से आप निकाले गए. It's unthinkable, frankly. But when you had to face this, जब आपके साथ ऐसा हुआ, what did you tell yourself? How did you manage to keep yourself motivated? मैं गाना गाता हुआ लोकल ट्रेन में वापस आ गया था। कौन सा गाना था? और मेरे दोस्त जो थे, तो सौरभ शुक्ला और विजय कृष्ण आचार्य, जो जिन्होंने धूम बनाई है, वो लोग डीएन नगर चौल हम लोग कमरे में रहते थे साथ। तो विजय कृष्ण आचार्य, विक्टर हम लोग बोलते हैं उसको, कहता है तू सुसाइड तो नहीं करेगा ना? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर सौरभ आया, सौरभ गॉट अस चिकन, एंड ही विक्टर एंड सौरभ दे काइंड ऑफ, एंड हम, मेरे पास भी थोड़े से कुछ पैसे थे या कुछ, हमने न्यूज़पेपर हम सब लोग पढ़ते थे, आदत थी न्यूज़पेपर, उसके बिना रह नहीं सकते थे हम लोग। सब पैसे मिला के न्यूज़पेपर तो रोज ही आता था। तो न्यूज़पेपर की जो इतना बंडल था उसको बेचा तो कुछ पैसे आए, तो उससे हमने जो है ना वो रम मंगाई अपनी ओल्ड मंक, एंड वी सेलिब्रेटेड रिजेक्शन। ओके, let's celebrate rejection. Let's celebrate, because you know that those people couldn't see the uniqueness in us. Let's celebrate somebody else's failure of really seeing that unique thing that God has given to you. Let's celebrate that, and without having any malice against anybody. No one is my enemy. The people who didn't give me work, they were never my enemy. It's just that they couldn't see it. They couldn't see it at that point of time. I don't have any malice against anyone, believe me. Rather, I've worked with many of them later on. Okay, I'm still in touch with them. But there's no personal enmity here. It's just that, you are in this situation at this point of time. And if you are in this situation, only person who can help you is you. Yeah. And if you are not able to help yourself, find help in your family, in your friend circle. Find help.
और इन योर नेबर, फाइंड हेल्प, बी शेमलेस। ये बहुत जरूरी है। मेरा एक भतीजा है, उसके पिताजी बहुत यंग एज में, अभी कुछ 2 साल पहले गुजर गए एक्सीडेंट में। मैं जब उससे गांव में मिला, मैंने कितना सीखा उससे, ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं। एंड वो अपने ही अंदाज में बोल रहा है कि मतलब भैया अब चाचा, अभी तो हमको ही करना पड़ेगा ना, तो हमको कोई जॉब दिलवाइए जल्दी से, हमको कुछ कराइए, हमको देखना है अपना, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार क्या लड़का है, कितना पॉजिटिव लड़का है ये। और उसको कोई लाज शर्म नहीं है। वो चाचा से कह रहा है जल्दी जल्दी लगा, जल्दी जल्दी जॉब लगाइए, मुझे फोन करता रहता है वो। और वो जब फोन कर रहा है तो मैं उसकी पॉजिटिविटी को देख करके और कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए उस तरफ। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने लोगों से इजहार करें कि हम तकलीफ में हैं। आई थिंक ये सबसे ज़रूरी बात है जो आपने बोली है, बिकॉज यू नो झिझक, यहाँ पे ईगो आ जाती है कि नहीं वी कांट टेल पीपल, बट बहुत ज़रूरी है कि आप मदद मांगे, और उतना ही ज़रूरी है कि सामने वाला मदद करे, यू नो दैट कलेक्टिवली हम वो सपोर्ट सिस्टम बना पाएँ। हम लोग थोड़ी सा ना बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हुए बहुत सालों से, और वो कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन का और मार्केट ओपन जो हुए, तो हम तो वह कमर्शियलिज्म जो है अपने चरम सीमा पे गया। वो इस कंट्री की, ये सोसाइटी की जो एक बड़ा कोर था कि हम पड़ोस के लोगों के पास जाके बैठ जाते थे चाय पीने के लिए। हम बड़े इंडिविजुअलिस्टिक और न्यूक्लियर हो गए बहुत ज्यादा। हमको बड़ी शर्म आने लगी दूसरे का दरवाजा खटखटाने में, और हम अपने आप में सफिशिएंट महसूस करने लगे। अपने फ्लैट में घुसे, दरवाजा बंद कर लिया, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वी डोंट केयर। थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, हम लोग अमेरिका नहीं है। हमारी अपनी जो सोसाइटी है उसके अपनी कुछ व्यवहार हैं, और वो व्यवहार बहुत कमाल है। वो कमाल है जिसमें कि पड़ोसी को भी जगह है, रिश्तेदारों को भी जगह है, सारी आपको डिसएग्रीमेंट के बाद भी। मेरे ख्याल से हम लोगों को इस पूरी न्यूक्लियर माइंड से ना निकलना पड़ेगा, और लोगों के साथ में थोड़ा मिंगल होना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। मैं जब गांव जाता हूं तो मैं जानबूझ करके मैं कहीं ऐसी जगह उतरूंगा या बाजार जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, जानबूझ के जाता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, और आप मिलिए मुझसे। मेरी तरफ आपको जो है इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका अपना नहीं हूं। और वो कोशिश हम सबको जो है हर जगह करनी चाहिए। वो मान्यता जो है हमारे समाज की, जो बहुत पुरानी है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। Finally, Manoj, I would want you to address my audience, the viewers, directly. Bounce Back Bharat का आपके लिए क्या महत्व है? And to everyone who looks up to you, आप क्या मैसेज देंगे अपना? Please, over to you. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपने सारे के सारे भारतवासियों को कि हमको अपने ऊपर में विश्वास रख के हर दिन पूरी मेहनत करनी है कि ये समय निकल जाए, और ये समय निकलेगा भी। ये कुछ 50 साल रहने वाला नहीं है, और ये 5 साल भी रहने वाला नहीं है। बस कुछ समय की बात है, और ये समय चला जाएगा। लेकिन जब ये समय जाएगा तो आप अपने ऊपर गर्व कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप हर दिन उठें, हर दिन एक विश्वास के साथ उठें, एक आत्मविश्वास के साथ उठें कि आप में वो सुंदरता है, वो खूबी है जो किसी और में नहीं है। आप इस समय को जाने तो दीजिए। मैं जानता हूं कि आप सब के सब वापस से उसी तरीके से आप अपने अपने सपने की तरफ दौड़ रहे होंगे जैसा कि इस महामारी के पहले दौड़ रहे थे। और मुझे लगता है कि शायद आप ज्यादा ऊर्जा के साथ दौड़ रहे होंगे और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दौड़ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने ये काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं।
Beautiful. Thank you, Manoj. I think nobody else could have put it better. Thank you for your wisdom और जो nuance आप इस discussion में लेके आए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े Bounce Back भारत Fest में. Thank you, Stuti, for calling me on this one.